Good morning, students. I hope you have learned last topic about addition, subtraction, and you have full knowledge on this, and you make all the problems in any book on related to properties of rational number, addition and subtraction of any two rational number or more than two rational numbers. Okay, now today's part is multiplication of rational numbers. How can we multiply rational two or more rational numbers? Because this chapter is for properties of rational number, addition, subtraction, multiplication and division. So here it is, we are at the stage of multiplication of rational numbers. The rational numbers are in the form a by b and c by d. We all know that, or b not equal to 0, c not equal to 0. So let us take two rational numbers a by b and c by d, and then the multiplication of these two rational numbers a by b and c by d is in the form a by b multiplied by c by d. A by b multiplied by c by d. So how can we do after that? Numerator is a for first rational and numerator is c for second rational. So we have to multiply a into c, and denominator is b and d, so b into d. So here it is a into c divided by b into d. Okay, now after writing this form, this kind of form, we then simplify this and convert to standard form. How can we simplify it? This is a multiplied by c, a denominator, a numerator, denominator b and d, दोनों मिला के b into d. So a, if any number common to a and b, then we can simplify this. If any number is common to a and d, then we can simplify this. Or if any number is common to c and b, then we can simplify this, and c and d, so we can simplify this. Okay, so after written in this form, we can simplify. Sometimes so many students simplify here, a to d simplify, a to b simplify, c to b simplify. लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको समझ में नहीं आता है कैसे करें, ए से सी को कटाए कि ए से बी को कटाए, ए से डी को कटाए, किसको किससे कटाए, इससे दिक्कत होता है. इसीलिए पहले इस फॉर्म में लिखो a मल्टीप्लाई बाई सी. मैं हिंदी भी कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश से. a मल्टीप्लाइड बाई सी, सो a को c से मल्टीप्लाई करो एंड b को d से मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई मतलब कि इसको अभी नहीं करना है, a इंटू सी b इंटू डी इस फॉर्म में लिखना है. उसके बाद a से कटाना है. a से किसको कटेगा, a टू b कटेगा, a टू d कटेगा, a से b को भी कट सकता है, a से d से भी कट सकता है. ओके, एंड c b से भी, c d से भी कर सकता है इस फॉर्म में. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. हियर आर टू रैशनल नंबर्स -6 by 11 and 7 by 9. 7 by -9. So these two rational numbers we can cut here, we can simplify here, but I'm follow the process what I said. All students, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि जल्दी जल्दी मैथ करने से इंपॉर्टेंट है मैथ को सीखना. बाद में तेजी आ जाएगा, उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉपरली सीखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है. तो हम क्या बताए कि a इंटू सी करना है. दैट मीन्स ये नहीं कि 6 इंटू 7 42 माइनस 42 लिख दो. ओके, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, -6 इंटू 7 जैसे मैंने लिखा है. ओके, एंड 11 इंटू -9 जैसे 11 इंटू -9 लिखते. उसके बाद देखो इसको सिंप्लीफाई होगा. जैसे मैंने बताया a से b एंड d कर सकता है, कोई नंबर कॉमन हो तो. -6 एंड 11 कोई कॉमन नहीं है क्योंकि 11 इज प्राइम नंबर. देखो -6 एंड -9 इसमें कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है. पहले तो माइनस साइन कट जाएगा, दोनों में माइनस है तो कट गया. अब 3 से कटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3 से कटेगा तो 2 होगा, 3 से कटेगा तो 3. अब वी कैन राइट 2 इंटू 7. अभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 इंटू 7 लिखे हैं, 2 इंटू 7 एंड 11 इंटू 3 11. उसके बाद मल्टीप्लाई करो. एज स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो क्या होगा, गलती नहीं होगा. डायरेक्ट बनाने की कोशिश करोगे पहले से गलती होगा, कंफर्म एकदम. ओके, सो फॉलो दिस मेथड. फर्स्ट नंबर 1 एंड नंबर 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखो. उसके बाद जिसको कटाना है कटाओ, ऊपर नीचे कटाना है कटाओ. उसके बाद इस फॉर्म में लिखो, सिंप्लीफाई हो गया. ओके, एक बात ध्यान देना है कि a से दोनों कर सकता है, a से b कर सकता है, a से d कर सकता है. मैं रेड कलर से लिख दिए, a से b एंड a से d कर सकता है, c से भी d कर सकता है, c से भी b कर सकता है. ओके, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट so follow the process for upcoming questions. Okay,
Now one important thing, product of two rational number is a rational number also. So product of two rational number, first rational number, second rational number, we have a rational number 14/33. Okay, now properties, we have learned some properties of rational number in addition, and but in subtraction some properties does not hold, but here are some properties, 1 2 3 4 5. These properties can hold for multiplication. First property is called commutative property, we already know that. Second property is associative property, you already know that. Third property, identity element for multiplication is 1, and the zero of the of multiplication is 0. So any number x, rational number, multiplied by some number 0 is always 0, or 0 into some rational number is 0. So 0 is the identity element. 0 is the zero element. Okay, so any number or any rational number multiplied by 0 is 0. 0 के साथ किसी भी rational number को multiply करो तो 0 होगा, and 1 के साथ किसी भी number को multiply करोगे तो वो number आ जाएगा. Okay, and this property is called distributive property for addition. Distributive property, and this is distributive property subtraction. This is called distributive property of addition, of multiplication over addition and subtraction. Okay, so कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है, and we have do something on this regarding left hand side, right hand side, proof or simplify or verify. Okay, one important चीज, जैसे एडिशन में भी था, सब्ट्रैक्शन में भी था, बहुत सारा तुम लोग गलती कर रहे हो, मैक्सिमम सही बना रहे हो, लेकिन 2-4 स्टूडेंट से गलती बना रहे हो, तो उसमें थोड़ा फोकस करो, ध्यान दो. एक चीज तो है इम्प्लाई. देखो इम्प्लाई कब यूज होता है, ये इम्प्लाई सिंबल है, कब यूज होता है इम्प्लाई तब यूज होगा जब कोई फॉर्म में अगर इक्वल साइन नहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तब इम्प्लाई होगा, नहीं तो ऑलवेज इक्वल साइन. ओके, जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बनाए, दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पे इक्वल होगा, यहाँ पे इम्प्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है इसमें इक्वल साइन पहले से नहीं है. तो जिस इक्वेशन में, जिस फॉर्म में पहले से इक्वल साइन है उसमें इम्प्लाई यूज कर सकते हैं. अभी कोई इम्प्लाई यूज करने का जरूरत नहीं है. जब इम्प्लाई यूज होगा हम बता देंगे. ऐसे कोई जगह नहीं है कि इम्प्लाई यूज करना हो रहा है. ओके, इम्प्लाई अभी कोई नहीं यूज करेगा इम्प्लाई. ओके, तो ये छोटे छोटे पार्ट है. आगे हायर एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में ये इम्प्लाई एंड इक्वल में बहुत ध्यान दिया जाता है. ओके, तो 2-4 स्टूडेंट देख रहे हो, आप ही वो कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, हाउ टू वेरीफाई. यहाँ पे बहुत कुछ देखना होगा. एक हाउ टू वेरीफाई द प्रॉपर्टी, शो दैट दिस इक्वल टू दिस. ये सब टाइप में 2 चीज इंपॉर्टेंट है. क्लीनली राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्लीनली लिखो. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिए है लेफ्ट हैंड साइड. अब वो जो कौन लेफ्ट हैंड साइड है, किस प्रॉपर्टी यूज करना है, जैसे मैंने बुक यहाँ पे है, बुक में देखो, वेरीफाई द प्रॉपर्टी x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू x इंटू वाई प्लस ऑफ x इंटू जेड. तो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, एंड इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड में. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, जिस प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है उसका लेफ्ट में जो है उसको लेफ्ट में लिखना है. उसके बाद x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू पुट करो, z का वैल्यू पुट करो, एंड सिंप्लीफाई करो. सिमिलरली राइट हैंड साइड में जो है उसको वैल्यू, इसको ऐसे राइट हैंड साइड लिखो. एंड ऑब्वियसली अगर कोई एक साथ दोनों को बना रहे हो एक ही साइड में, तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद एक लाइन खींच दो यहीं पे, ये लाइन. ओके, उसके बाद राइट हैंड साइड. कोई फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड करके उसके बाद राइट हैंड साइड नीचे करना चाहते तो लाइन जरूरी नहीं है. ओके, ये बात ध्यान देना है, यहाँ पे भी जरूरी है. ओके, इसके बाद उसी टाइप का कुछ होगा इसमें कि वेरीफाई सिंप्लीफाई. ओके, एंड नेक्स्ट जो है रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल क्या है, वो पहले ही पढ़ चुके हो तुम लोग, क्लास 6 में भी था, क्लास 5 में भी था. तो रेसिप्रोकल इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, जैसे x इंटू समथिंग 1, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, तो x इंटू समथिंग 1, तो समथिंग क्या होगा, x इधर चला जाएगा नीचे, तो 1/x. तो x के साथ किसको मल्टीप्लाई करे ताकि 1 आए, तो x के साथ 1/x को मल्टीप्लाई करना होगा. तो 1/x इज कॉल्ड द इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ x. ओके, सो इनवर्स इज 1/x और रेसिप्रोकल इज 1/x. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज डिनोटेड बाय x इनवर्स. This is denoted by x inverse. Reciprocal of a by b is b by a. ओके, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा.
Okay, reciprocal of a rational number is सिंपली इंटरचेंज द इंटीजर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इंटीजर को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो है उसको इंटरचेंज करो, ये है रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ओके, एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1 is 1। Okay, if x is a non-zero rational number then reciprocal is 1 by x, अभी भी बताए, and 1 by x can be denoted by x inverse, so x inverse equal to 1 by x। this form याद रखो कि x inverse equal to 1 by x आगे जरूरी है। Okay, so students, this part is for multiplication of rational numbers। watch the video and if it is helpful and then subscribe my channel so that I make more videos on this and simplify। if you have problem on English, so I can talk in Hindi or class, I can take class on Hindi। okay, so write comment on this and please like and subscribe my channel so that more videos you can see on your notification wall। and students, if you want to watch my old videos, if you want to watch my old videos, then subscribe my channel and click on my channel mathematics.learn, and then you have all videos there which I uploaded। okay, so today आज इतना ही for multiplication of rational numbers and some worksheets I have to do। okay, so follow my classes regularly, hope it will improve your mathematical skill।